if you talk about the hyperbola, so basically we can categorize based on second degree. Now we have discussed how to distinguish some kind of conics, which kind of conics is based on the your second degree, the general second degree equation, and based on the how the plane is cutting the cone, and obviously based on the what's called eccentricity. So in terms of second degree equation, you recall that ax square plus by square 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. In terms of second degree equation, what is the condition for first of all degenerate and non-degenerate case? So since hyperbola is a non-degenerate case, so delta should not be 0. You call that one. This is just to ensure that they represent the non-degenerate case. If just delta 0 not equal to 0 implies they may represent circle, they may represent parabola, they represent hyperbola, they represent ellipse. But if they want to represent, let's say, the hyperbola, the condition is h square is equal to ab. Okay. So this is the second degree criteria. Second, in terms of fixed point, which is called the focus, and fixed line, which is called the directrix. So P is such that distance from the fixed line and distance from the fixed point. The fixed point is called the focus and the fixed line is called the directrix. So what is the criteria? You recall that PS upon PM. PM. This should be obviously E. If E is 0, they represent or the E0 is not the criteria. If is equal to 1, E is equal to 1, they represent parabola. E is greater than 1, they represent hyperbola. They should be greater than 1 for hyperbola. Got it? Just like E less than 1, it's ellipse. E is equal to 0, circle. E is equal to 1, the parabola. Got it? So these are basic things. If any equation is given, how do we distinguish? This is the criteria. Now, हाइपरबोला में डायरेक्ट्रिक्स क्या है? सिम्पटोट रहेगा? सिम्पटोट नहीं वो अभी बनाऊंगा. अभी आई हैव नॉट येट ड्रॉन द हाइपरबोला, बट कंडीशन ये है कि वो ऐसा मूव करेगा. देखो मैं बताया था, द पॉइंट इज मूविंग सच दैट, कहीं पे भी पॉइंट रहेगा कैसा ऐसा मूव करेगा. द पॉइंट इज मूविंग सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, दैट इज द फोकस, divided by the distance from the fixed line, that is this one, if the ratio should be greater than 1, then this particular term or this particular locus will represent a hyperbola. ठीक है? Okay. Got it. एक ही और स्टैंडर्ड इक्वेशन इसको हम विल अप्लाई. हम पी को जनरल पॉइंट ले लेते हैं, एक्स वाई, एस को ले लेते हैं a,0 और पीएम कुछ लाइन मध्ये चलो सेफ्टी ले लेते हैं. मान लो दिस लाइन इज वेरी, हम क्या ले लें, एक लेते हैं. हाँ, इस लाइन को ले लिया मैंने माइनस ए बाई ई ले लिया. ठीक है, कुछ ले लिया ए बाई ले लिया इस लाइन को, और इसको मैंने ले लिया ए ई कॉमा 0, फिक्स पॉइंट ले लिया ई कॉमा 0, और इस लाइन को फिक्स लाइन को ले लिया मैंने x इज इक्वल टू ए बाई ई. एंड व्हेन यू अप्लाई दिस क्राइटेरिया यू विल एंड अप विद सम स्टैंडर्ड इक्वेशन. चलो अप्लाई करते देखते क्या आता है. और p जो है जनरल पॉइंट है, x y ले लेते हैं या h कॉमा के लिए तो x y डायरेक्टली ले लेते हैं. We'll apply PS upon PM. What is PS? PS is x minus AE का होल स्क्वायर प्लस y minus 0 होल स्क्वायर का रूट अपॉन PM. So E स्क्वायर PM. PM क्या आ जाएगा? इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या आ जाएगा? इसको तो ऐसे निकल जाएगा ना. देखो कहीं ओरिजिन है, कहीं पे तो ओरिजिन रहा होगा. ये मान लो y x माइनस ए. हाँ, x माइनस ए बाई का होल स्क्वायर.
सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर ले लिया मतलब इसको हटा दिया मैंने, देखते हैं क्या आता है। कुछ है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस 2x ए बाई ई हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स ए ई, और ये स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो ये कर गया, अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसको उधर ले गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, समझा क्या क्या मैंने? सेकंड सिंपल कैलकुलेशन किया मैंने, आई अज्यूम कि फिक्स लाइन ए बाई ई है, मैं क्यों ए बाई ले रहा हूँ उसको आगे कहूँगा क्योंकि वो बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है, तो मैं ले लिया फोकस पे ई कॉमन जोड़ ले लिया और मैंने बस यही लगा दिया। अब देखो एक चीज ध्यान देना, ई की वैल्यू फॉर हाइपर बोला ई की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इसको लेना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये निगेटिव हो गया तो एक्स निगेटिव रखो तो बेटर है। देखो इसको अगर लोगे तुम ए स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस ई स्क्वायर, सिंस ई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसको बेटर है ऐसे लिखूंगा, बस लिखा हूँ देखो, इसको उधर ले गया राइट हैंड साइड पे, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, समझ क्या किया मैंने? तो उधर ले गया, तो उधर ले गया। अब चाहो तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ए स्क्वायर तो आ गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अगर ध्यान से देखो कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, से मैं बी स्क्वायर मान लेता हूँ, कुछ तो मान लेता हूँ बी स्क्वायर, ठीक है। ये बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ हाइपरबोला, ओके। माइनस माइनस क्योंकि ऐसा क्यों है तुमसे ना, व्हाई इट इज हाइपरबोला, व्हाई इट इज रिकॉल, कैन यू रिकॉल वी हैव दिस इक्वेशन, अगर मैं x को मान लूं a cos हाइपरबोलिक थीटा, ओके, और y को मान लूं b साइन हाइपरबोलिक थीटा, इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? देखो कट गया तो क्या आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट किया हमने, आ जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड दैट इज रिलेशन, याद है हाइपरबोला हमने साथ किया था स्टार्टिंग, तुम मुझे पूछ रहे थे कि हम इसे हाइपरबोलिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्या रिलेशन है ऑफ दिस माइनस, अब यही चीज बीच में प्लस हो जाता तो ये एलिप्स हो जाता, ठीक है। तो now I come to this point, so the standard फॉर्मूला पैराबोला का देखा, स्टैंडर्ड हमने एलिप्स का देखा, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का भी है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला या स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। और इसमें बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, रिलेशन है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, अगर चाहो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 और ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये रिलेशन है। अगर तुम्हें ए और बी गिवन है तो यू कैन फाइंड द ई बाय द हाँ, तो उससे एक्सेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं। हाँ, एक्सेंस निकालने ये फॉर्मूला होता है। हाँ, अब इससे एक चीज ध्यान याद है, हमारा एक्सेंसिटी का एलिप्स के केस में क्या था फॉर्मूला, एक्स 1 माइनस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है।
और इसमें a की वैल्यू b से बड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज ये निगेटिव हो जाएगा इधर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है हमेशा, तो डिफाइन नहीं होगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बड़ा हो, a भी बड़ा हो b भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस ऑलवेज डिफाइन। बट इन दिस केस दिस इज एलिस में तभी डिफाइंड है जब a की वैल्यू b से बड़ी है, और इसीलिए इसको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बताऊंगा। Can't have eccentricity greater than 1 क्या for हाँ? ellipse? Ellipse में you can't have eccentricity greater than 1 क्या? हाँ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और एक वैल्यू 1 b से बड़ी, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1, तो 1 में से कोई भी लेस देन 1 वैल्यू घटाओगे, ओके, तो ऑब्वियसली द वैल्यू विल बी लेस देन 1 एंड दिस वैल्यू कांट बी ग्रेटर देन 1। अगर b की वैल्यू ऐसे बड़ी हो जाएगी, दिस इज नॉट डिफाइंड, एलिप्स इज नॉट डिफाइंड। तो इन केस ऑफ एलिप्स eccentricity is 1 minus major minor whatever minor upon major axis हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई मेजर माइनर नहीं, तो चाहे बी बड़ा हो चाहे ए बड़ा हो, हमेशा डिफाइंड है, उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा थोड़ा सा। बट ये चीज ध्यान देना कि ये अपने पास ये स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें दो ठीक है, इन द सेम वे एलिप्स को याद करो, एलिप्स के साथ रिलेशन पर थोड़ा डिफरेंस आता है, वो आगे बताऊं क्या डिफरेंस होता है। एलिप्स के केस में यहाँ पे प्लस लग जाता है, यहाँ पे माइनस है, ओके। और वो किया का दोनों का सेम है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, यहाँ भी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। अभी वो चीज समझेंगे ज्योमेट्री। और जो डायरेक्ट्रिक्स है लाइन, यहाँ भी आता है प्लस माइनस ए बाई ई, यहाँ भी आता है प्लस माइनस ए बाई। बट अगर एक्सेंट्रिसिटी की बात करें, यह आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इसको ड्रॉ करोगे तुम, कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? अगर ड्रॉ करोगे तुम इस क्वेश्चन कुछ इस टाइप का मिलेगा। पहले तो यहाँ एसिम्प्टोट होता है, हाइपरबोला मतलब एसिम्प्टोट, ये एसिम्प्टोट होगा, तो पैराबोला बनेगा ये टाइप का, सॉरी हाइपरबोला, ध्यान देना। लग रहा है ये पैराबोला, पैराबोला है नहीं, क्योंकि पैराबोला में कोई एसिम्प्टोट नहीं होता, अगर पैराबोला बनाते तो बाहर भी चला आता है इसके, ठीक है। पैराबोला इज नॉट नेसेसरी that x value infinity they are approaching towards any line, no, there is no such condition for parabola, but this is the condition for a hyperbola, so that's why this is restricted between these two lines. These lines are asymptote anyway, they fulfill the criteria of the line asymptote. What does asymptote mean? This is a line such that as the value of x infinity, the distance between the curve and that particular line decreases indefinitely, then that line is called asymptote, okay। अभी इसकी इक्वेशन कैसे आती है, इसको हम अभी स्पेसिफिक केस देख रहे हैं। किसी भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इसको 0 कर दो, जैसे ही 0 कर दोगे ना, 0 द कांस्टेंट 0, देन वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट इक्वेशन क्या आ जाएगी, y is equal to plus minus b by ax, ठीक है। एक हो सकता है कि y is equal to b by ax है, दूसरी y is equal to minus b by ax, ठीक है, okay। These are asymptotes. I am just discussing for a standard hyperbola. We can same discuss for any general hyperbola. General hyperbola means second degree.
here I am talking standard hyperbola. In case of standard hyperbola, just put the 1, replace the 1 with the 0, then we turn out two equations of line. These two equations of line nothing but the asymptote. Okay? Okay. अब कुछ चर्चा एक क्वेश्चन था। हाँ, एक क्वेश्चन था, हाँ, अगर आप ये हाइपरबोला वर्सेस पैराबोला का इक्वेशन देखो, देन दिस हाइपरबोला इज जस्ट अ पैराबोला दैट इज स्ट्रेच्ड अलोंग द वाई एक्सिस, तो उसके दो कॉपी कैसे बन जाते हैं? अच्छा, तुम कह मतलब ओके नाउ, अब तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये दो दो पैराबोला तो है ना, समटाइम्स यूजिंग दिस टू पैराबोला, तो अगर सपोज अभी मैंने इसको वैसे प्लॉट करोगे तो बन जाएगा, लेकिन व्हाई वी आर गेटिंग टू पार्ट्स, थिंग इज अगर मैं इसको मान लो पैराबोला मान लेता हूँ, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मान सपोज दैट मान लेता हूँ 4ax, तो एक पैराबोला ये है, दूसरा पैराबोला ये है, तो कंबाइंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4, पर 4 डिग्री कोई भी कोनिक रिप्रेजेंट नहीं करता ना, सेकेंड डिग्री जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट द कोनिक्स, सो दैट वे वी कैन से दैट दीज आर नॉट द टू पैराबोलास, और टू पैराबोलास होता तो 4 डिग्री होता, पहली चीज। दूसरी चीज एज ए डिस्कस बिगिनिंग में ही कि अगर मैं इसको पैराबोला बनाता तो पैराबोला इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन दीज टू लाइंस, पैराबोला ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर हम लोग चालू करें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वेशन, और हाइपरबोला का हमें इक्वेशन लाना है, तो वी जस्ट हैव टू स्ट्रेच इट बाय द एक्सेंट्रिसिटी का फैक्टर ना। यस यस यस, दिस इज समथिंग लाइक दिस, जैसे अगर आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है 0, ठीक है, अब इसको मैं उठा के स्ट्रेच कर दूं, ऐसे स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, तो क्या बन गया, ये समथिंग एलिस बन गया, इसकी वैल्यू कुछ तो 0 से बड़ी होगी, ऑब्वियसली 1 से छोटी होगी, तो एक्चुअली अगर यही चीज मान लो पैराबोला है, ई की वैल्यू 1, ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच कर दूं, स्ट्रेच जस्ट सच दैट ई की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, ठीक है, देन दे टर्न आउट टू बी हाइपरबोला, ओके, आप समझ रहे हो, लेकिन आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, स्ट्रेच कर ऐसे लेना पड़ेगा कि ई की वैल्यू 1 से बड़ी हो। एक्चुअली देखो, अगर मैं एक फिक्स पॉइंट ले लिया, फोकस फिक्स लाइन ले लिया, ये मान लो यहां से वेरिएबल पॉइंट पी और ये इक्वल है, सपोज दे आर इक्वल डिस्टेंस में है सब जगह पे, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पैराबोला, बिकॉज पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1। अब मुझे ई की वैल्यू 1 से बड़ी करनी है, ई की वैल्यू 1 से बड़ी करेंगे तभी तो मुझे हाइपरबोला बनेगा। इफ आई टू मेक ई वैल्यू बड़ी करनी, मतलब क्या करना है कि पी एफ की वैल्यू पी एम से बड़ी करनी है, ओके, सो दैट मीन्स ये इसके बाहर कहीं पे रहेगा, बाहर कहीं पे रहेगा, ठीक है, यहाँ ले सकते हो, मान लो ऐसे बनाना चाहो, ये पी डैश या P1, नाउ यू कैन सी दैट द P and this one, so now PF value is greater than PM, ऐसे करके जब तुम ड्रॉ करोगे, when you draw something like this, okay, so then maintain this part, so we get the hyperbola, okay, got it? हाँ, तो इस टाइप का हम स्ट्रेच करके ऐसे बना सकते हैं सिंपल ज्योमेट्री, ओके, ठीक है। अच्छा, वापस कम टू द थिंग्स। अब देखो एक चीज और ध्यान देना, जब हमारे पास ये एलिप्स था, स्टैंडर्ड एलिप्स हम मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या था a,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या था -a, इसका कोऑर्डिनेट क्या था 0, b 0, और यहाँ तो फोकस था, फोकस कोऑर्डिनेट क्या था AE, 0, ठीक है, इधर वाले कोऑर्डिनेट क्या था -AE, 0, और यहाँ एक डायरेक्ट्रिक्स थी x इज इक्वल टू a बाई, ये करस्पॉन्ड,
ये डायरेक्ट्रिक्स किसकी है, ये डायरेक्ट मतलब जो अगर आप अप्लाई करना चाहो तो यू हैव टू अप्लाई विद दिस डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। F1 F2, so your concept is applied for this directrix, ठीक है, corresponding directrix। यहाँ पे ध्यान देना, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस कितनी है इंटू ई, छोटी हो गई क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू 1 से छोटी है, तो अब एक ए ई की वैल्यू ए छोटी आ जाएगा। तो जैसे एलिप्स में वी हैव टू डायरेक्ट्रिक्स, टू फोकस, ओके, एंड ऑब्वियसली देयर इज अ वर्टेक्स। सेम वे इन योर हाइपरबोला, पहले बना लेते हैं हम लोग, हमेशा इजी रहता है अगर हम इसको वो बना लें एसिम्प्टोट। ये वर्टेक्स ये हो गया a,0 और ये हो जाएगा -a,0, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, फोकस सेम रहता है दोनों का, इक्वेशन दोनों का सेम है, चाहे आपका एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, फोकस आएगा +-ae,0 और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x +-a/e, ओके। देखो यहाँ भी a/e वैल्यू क्या होगी, ये देख सकते हो डिस्टेंस की a/e, इसमें डायरेक्ट्रिक्स अंदर होगा, फोकस बाहर होगा। हाँ, क्योंकि अब फोकस यहाँ हो जाएगा ae,0 और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा x =a/e। तो जब ये किसी भी वेरिएबल का ये इस फोकस का ये करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है, तो हम ये अप्लाई करेंगे Pf1 अपॉन Pm = हम ये यूज नहीं करेंगे Pf अपॉन Pa वाला डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स मान लेते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है, x =-a/e। जैसे एलिप्स में था, इस फोकस पे ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट इस फोकस पे डायरेक्ट, ये हम ये अप्लाई नहीं करेंगे Pf1 अपॉन P दिस वन = नो, क्योंकि इस फोकस की ही डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, इस फोकस की डायरेक्ट्रिक्स है, इस फोकस की डायरेक्ट्रिक्स है -a,0 और अप्लाई करेंगे तो यहाँ अप्लाई करेंगे M2, ये P2, और गॉट इट। तो ये तो हो गया आपके पास डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और बस क्योंकि ई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जो हम बाहर था वह छोटा हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। कुछ टर्मिनोलॉजी है देख लेते हैं, जैसे वहां पे हमारे पास क्या मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस याद है, वहां हमारे पास ये अगर एक्सिस है जो लंबे साइड पे है वो कहलाती थी मेजर एक्सिस, और जो छोटे साइड पे ये कहलाती थी माइनर एक्सिस। तो ये लेंथ था 2a और ये लेंथ था 2b, तो सेमी मेजर एक्सिस हम बोलते थे a को सेमी मेजर, और b को बोलते थे सेमी माइनर एक्सिस। वैसे यहाँ पे माइनर एक्सिस नहीं होता, बट इस लाइन को हम बोलते हैं ये वाली लाइन, जो कि फोकस, जैसे ये जो फोकस को जॉइन करती है लाइन ना, इन द एलिप्स द लाइन जॉइनिंग बिटवीन दीज टू फोकस दे आर कॉल्ड द मेजर एक्सिस। अब यही चीज ऐसे उल्टा हो जाता है, अगर ऐसे हो जाता तो तब मेरी ये हो जाती मेजर एक्सिस, ठीक है, बिकॉज देन द फोकस इज हियर, मेजर एक्सिस इज द लाइन जॉइनिंग द फोकस, एंड तब यहाँ पे ये हो जाता है माइनर एक्सिस। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं हाइपरबोला देखेंगे, बट यहाँ पे द लाइन जॉइनिंग द फोकस F1 F2 दे आर कॉल्ड द नॉट मेजर एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं हाइपरबोला में, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेजर माइनर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं ना, यहाँ तो दिख रहा है मेजर मतलब बड़ा हो गया, माइनर मतलब छोटा हो गया, दिस इज नॉट मेजर, दिस इज माइनर, बट हियर हाउ कैन वी कंपेयर द मेजर एंड माइनर, देयर इज नथिंग लाइक मेजर। Major means to compare something. That okay, oh, this is larger, so it's a major. This is smaller, it's a minor. But here nothing like major or minor. Okay. So
we will say it's a transverse axis. So just like for a standard parabola, transverse axis की equation क्या आ जाएगी? Y is equal to 0. ठीक है. In general, what is transverse axis? It is a line joining the focus. Got it? Got it. अब जैसे वहां पे अपने पास माइनर एक्सिस था एलिप्स के केस में, वहां पे b, 0 था, हमने भी यहाँ माना है ना. सी द थिंग इज इन केस ऑफ एलिप्स we have assumed that x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. जहाँ हम b निकाले, b दिख रहा था, we know कि b है क्या, b माइनर एक्सिस के वर्टेक्स है. लेकिन अगर यही चीज मैं हाइपरबोला बोल दिया, तो अब मेरे पास जो माइनर एक्सिस हो जाएगा उसको कुछ ऐसा वर्टेक्स दिख तो रहा नहीं है, तो हम एक बनाने के लिए बना सकते हैं. ये अपने पास हो गया a, 0, तो कोई दिक्कत नहीं है. a, 0 माइनस a, एक हम ऐसे पॉइंट ले लेते कॉरेस्पॉन्डिंग कहीं पे भी, 0, b और 0, माइनस. दे आर नॉट द any point on an ellipse or on a hyperbola, unlike in ellipse where a, 0 and b, 0 are the point, extreme point on the ellipse. There is nothing like the 0, b or 0, b lies on the hyperbola. ऐसा नहीं है. Okay, but they are given some name. No, इसको इस line को, the line which join these 0, b and 0, minus b, this line is called the conjugate axis. तो आगे देखेंगे why the term conjugate, just like there we use the term major axis, minor axis, because there is some relation. Major axis is along which the major ellipse has a larger length. This is called the major axis. Along this ellipse length is shortened. That's why this is called the minor axis. Whereas in this case, the conjugate axis. Okay, we'll shortly see why this is called the conjugate axis. But this is the axis which is perpendicular to the transverse axis. What is conjugate axis? This is, we can say, the perpendicular to the transverse axis. This equation obviously x is equal to 0 आ जाएगा. Okay. तो conjugate axis है, तो ends of conjugate axis हम कई बार जैसे बोलते हैं, ends of major axis क्या था अपने पास, a, 0 and minus a, 0. ends of major axis, minor axis क्या था, जैसे ये वाले केस में ends of the minor axis 0, b and 0, minus b. Same way बोलने को हम यहाँ बोल सकते हैं the ends of conjugate axis, ends of conjugate axis, plus minus 0, plus minus. ठीक है. हाँ. और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b हो जाएगा. और सेंटर यानी दिस इज सेंटर, जैसे वहां पे भी सेंटर था, center 0, 0. So I am explaining many things. Few of things I will create a YouTube video and I will explain the theory. But parallelly I will थोड़ा मैं समझाने के बेसिक समझा दे रहा हूँ मैंने. I think I will try to cover the hyperbola and then whole coordinate will be covered. The basics everything covered. Now next time onward we will only solve some good problems and through which if any concept is involved we can cover. Okay. There are many good concepts associated with the coordinate. Because I used to teach when I was in Bombay, I used to teach coordinate geometry and calculus to the ITJ advanced, and I recall that one or two students got under 100 ranks also in 2017-18. These are coordinate geometry and calculus are my strongest point. So, I devote most of time, but since you, for your case, you take once in a week class, okay, so I have to cover the basics also. That's why I'm just going the fast way. ठीक है. अब लेटस रेक्टम, जस्ट लाइक इन एलिप्स, व्हाट इज लेटस रेक्टम? ये फोकस है, ends a line which is perpendicular to the transverse axis. तो x कोऑर्डिनेट तो इसका क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा, और ये माइनस a नहीं, ये प्लस ही रहेगा. सॉरी, जैसे एलिप्स में था a e ओनली, बिकॉज x कोऑर्डिनेट रिमेन सेम. y कोऑर्डिनेट से वहां पे था b स्क्वायर ये आया था, याद करो, तो सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ भी आ जाएगा माइनस b स्क्वायर अपॉन a. ठीक है.
just substitute a here, we'll get the y two values of one is b square by a, other is minus b square. So इसको मान लेते हैं length of lattice rectum l dash. We can say what is l dash, 2b square upon a. This is same for the ellipse also. Okay, length of lattice rectum. क्योंकि दोनों में सेम है ना. हाँ ठीक है. अंतर क्या होता है भाई, वहां प्लस था वहां माइनस था, यही रखोगे तो सेम ही आएगा. देखो भाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक में रखा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो जो अपने पास आती है ना, देखो ऐसा होता क्यों, ए स्क्वायर कट गया तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. तो ये बी स्क्वायर 1 माइनस है क्या है? चलो अगर चाहो तो एलिप्स के केस में कर सकते हो. एलिप्स के केस में यू रिकॉल दैट हमारे पास ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बी रेज़ टू 4 डिवाइड बाय ए स्क्वायर. हाँ तो एक तो ऑलरेडी वन माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे लेकिन है बी स्क्वायर, तो मुझे ए स्क्वायर, देखो अल्टीमेटली क्या हो जाए, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होगा. मैं यहाँ ए स्क्वायर मल्टी किया, ये उसको डिवाइड किया, तो ये चीज जो आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर, तो बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. तो बस सॉरी यहाँ तो कर, तो अल्टीमेटली अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन. ठीक है, सेम अपने पास ये वाला क्या कहते हैं, हाइपरबोला केस में वही कर सकते हैं. ठीक है, दे आर द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. ओके, एक और हाँ चलो हम वो डिफाइन करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म. यू रिकॉल दैट हम जब पैरामेट्रिक सर्किल का डिफाइन कैसे कर रहे थे, एलिप्स का. See, we said that a cos theta and b sin theta are the parametric form of the ellipse. लेकिन ये थीटा क्या होता है, अगर कहीं पॉइंट P है तो विल नॉट से दिस इज द थीटा. समझ रहे हो, पॉइंट P का तुम लिख सकते हो कि a cos theta and b sin theta, but will not say that this is theta. थीटा कैसे निकलता था, थीटा के लिए we draw the auxiliary circle. okay, एलिप्स हो गया and we draw an auxiliary circle. What is the auxiliary circle? A circle which touches the major axis, the vertex of the major axis and having the radius, obviously the radius क्या होगा, इसका radius यही हो जाएगा. And what is theta? So हम अगर किसी को थीटा, ये पॉइंट P है, पॉइंट P नहीं है, अगर हमें किसी पॉइंट को P निकालना है, इसका थीटा क्या है, विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, जहां पे कट करेगा दैट इज थीटा. ध्यान देना, ये थीटा नहीं है, थीटा ये है कि ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन द मेजर एक्सिस एंड वेरेवर द पॉइंट कट ऑन द ऑक्सिलरी सर्किल, दैट पॉइंट मेक्स एंगल थीटा, दैट इज द एंगल थीटा, दैट इज उसको कह सकते हो पैरामेट्रिक एंगल. ओके, अभी तो देखो ना, दैट्स व्हाई दिस इज ए है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए cos थीटा होगा कि नहीं. ठीक है, दैट्स व्हाई P हैज ए cos थीटा. लेकिन अगर तुम यहां से लोगे थीटा और P, यू कांट से, बिकॉज़ ये डिस्टेंस में पता ही नहीं ना, वी डोंट नो दिस डिस्टेंस. तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो है ये cos थीटा है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज़ वी डोंट नो दिस डिस्टेंस. लेकिन यहां तो पता है कि ये तो ए ही है. तो B cos थीटा के लिए छोटा वाला करते हैं ना,
नहीं, बी कॉस थीटा वहां से नहीं आता। बी कॉस तो तुम्हारा दूसरा सर्कल बना सब्स्टिट्यूट करके आ जाता है, सब्स्टिट्यूट करोगे उसमें तो आ जाएगा इस क्वेश्चन में। बट अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम ये डिस्टेंस देखो, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। व्हाट इज बी, व्हाट इज बी साइन है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा बताओ। छोटा वाले बात नहीं, यू कांट से कि थीटा, थीटा तो यही है। कैन यू गेट दिस डिस्टेंस, वी गेट, हाउ वी गेट दिस डिस्टेंस, हमने पी को ज्वाइन किया ऑक्सिलरी सर्किल पे, दिस डिस्टेंस इज ए, रेडियस इज ए, एंगल थीटा, सो आई गेट दिस इज ए कॉस थीटा। बट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ना, पी का हमें क्या चाहिए, बेसिकली जो पॉइंट पी है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया, ए कॉस थीटा है। व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, नहीं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया। ये ऐसे भी निकाल सकते, अगर दोनों फोकाई का इक्वेशन मालूम है तो उससे निकाल सकते हैं कि हाँ पी वैसे एफ निकाल वन प्लस देखिए, अभी क्वेश्चन में ही रख दो ना। देखो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, रख दिया एक्स की वैल्यू इसमें। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए कट गया, उधर चला गया तो हो गया क्या, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो वहां से आ गया वाई वैल्यू से आ जाएगा। हाँ सेम वे में अगर आप हाइपरबोला देखते हो, ठीक है, हाइपरबोला में भी ऑक्सिलरी सर्किल आता है, कैसे आता है, ऑक्सिलरी सर्किल होगा वही जो इनके एंड्स वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ एलिप्स। लकीली क्योंकि उसके एक्सट्रीम एंड ऑफ मेजर एक्सिस थे तो उसको ज्वाइन किया तो हमारा इसके बाहर आया सर्किल। यहाँ पे दीज आर द नॉट द माइनर बट दे आर द वर्टेक्स थ्रू व्हिच द सर्किल विल टच एंड पास। ये जो बनेगा ये बनेगा, ठीक है, अभी भी रेडियस यही रहेगा बिकॉज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज a, 0 माइनस a, दिस इज ऑक्सिलरी सर्किल। जैसे यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्किल था, सेम वे दिस इज ऑक्सिलरी सर्किल। अब तुम्हें कोई भी पॉइंट दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें तुम्हें पॉइंट दिया है, तुम्हें इसका वो निकालना है पैरामेट्रिक फॉर्म, जिनकी अलग थ्योरी रहती है, मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कैसे निकलता है ये, मैं बता दे रहा हूँ, तुम सोचना। जो पैरामेट्रिक फॉर्म रहता है अभी, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा होता है इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, कोई भी पॉइंट भी है यहाँ पे, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। अच्छा अब इसको सोचना कि थीटा कौन सा एंगल है, यहाँ पे तो ठीक है, थीटा क्या था, हमने पी को ज्वाइन किया, जहां ऑक्सिलरी सर्किल कट किया वही मिल गया थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, इसको एक मिनट सोचते हो, मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, ठीक है, सोचना है इसको कैसे होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये थीटा कौन सा होगा। सोचता हूँ। थीटा तो 1/cos थीटा हो जाएगा, तो 1/7 तो मैं क्या होगा, देखो इसकी बहुत अलग थ्योरी रहती है, क्या रहता है ना, तुम्हें मान लो पॉइंट पी का निकालना, एक्स देखना क्या बनाया था, काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मान लो तुम्हें पॉइंट पी का तुम्हें निकालना है, तो कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ड्रॉप करेंगे, जहां मिलेगा, इसे मान लेता हूँ क्यू पॉइंट, मैं क्या करूंगा, क्यू को जहां पे भी क्यू है, जहां पे भी क्यू है वहां से मैं सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है, समझिए। एक सेकंड,
चलो उसको सोचो, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के थीटा निकाला जाता है, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं खुद से डिराइव करने का ट्राई कर रहा हूँ। हाँ तो सोचो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो सकता है, मतलब सोचोगे तो तुम्हें, क्योंकि पैरामीट्रिक एक, दिस इज वन ऑफ द पैरामीट्रिक, किसी भी इक्वेशन के देयर इनफाइनाइट वेज ऑफ फाइंडिंग द पैरामीट्रिक, कोई फिक्स नहीं होता कि एक ही नहीं होगा, देयर इनफाइनाइट वेज। एक जो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वो हमने ये ले लिया कि एक sec theta and 8 है, दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच इज ऑलमोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पैरामीट्रिक। So it's not less than this is the only parametric form. There may be infinite ways to write any equation into parametric form. ये sec theta तो है। तो नहीं आ रहा है कैसे अप्रोच करो, क्योंकि जब ऐसे अप्रोच मालूम होगा तो ऑब्वियस है, पर एक हाउ डू यू प्रूव इट वो नहीं होगा। क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि प्रूव करने का अप्रोच नहीं आ रहा है, कैसे ट्राई करो। वही तो term जो पैरामीट्रिक उसी तरीके से निकाल सकते हैं, that's not a big deal। मैं वो पैरामीट्रिक फॉर्म बात a sec theta cos a sec theta और b tan theta, ठीक है। जैसे वहां पे x मिल गया तो y अपने आप निकल गया, वैसे यहाँ पे तुम कोई भी x या y निकाल दो तो काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें डर्टी है, गंदा है, कैसे बता मैं कैसे निकाल रहा हूँ पैरामीटर फॉर्म, देखना। पहली बात तो थीटा है क्या, उसको देखो भाई। मुझे पॉइंट पी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। मैंने पॉइंट पी का परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसके ट्रांसवर्स एक्सिस पे, मान लो क्यू पे मिला। क्यू पे मैंने टेंजेंट डाला इस ऑक्सिलरी सर्किल पे, जहां टेंजेंट पे मिला, एक से मिल रहा होगा, जहां कहीं पे टेंजेंट मिला इसको, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा ये थीटा होगा। हमारे कितना गंदा है ये, हमें पर ऐसा क्यों करते हो वो फिगर आउट कर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो पैरामीट्रिक फॉर्म a sec थीटा और tan थीटा फॉर्म में चाहिए। पर देखो अब क्यों करते हैं, इसका दो तीन रीजन हो सकता है कि भाई अपने पास, भाई अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या तो मैं इसको सेक बनाता। अगर एक्स में एक एक्स को सपोज मैं एक्स को ये कोशिश करता है कि यार ए साइन थीटा या कॉस थीटा हो जाए, ठीक है। अगर एक्स में कॉस थीटा बनाता तो अपने पास क्या आता, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। तो अपने पास आ जाता, ये आया था cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसे मैं क्या लिखता बताओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिखता, तुम सोच रहे हो कि माइनस एक्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तुम ये सोच रहे हो कि ये माइनस ले लिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लिया, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बट अब ये गंदा हो गया क्योंकि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव तो हमेशा निगेटिव हो गया, या तो जीरो हो। दिस ओनली पॉसिबल इफ थीटा इज जीरो व्हेन y जीरो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x को a cos थीटा अपना अच्छा तो काम नहीं करेगा। गॉट इट, हो गया? हाँ समझ गए। वो हम बाद में देखेंगे थीटा क्या होगा। हाँ पहले हम देखेंगे हम क्या रखें कि अच्छा बन जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यार x इज इक्वल टू, बहुत सारी बन सकती है, जैसे मैं भी बताया a sec थीटा मैंने लिया, इसके साथ फायदा क्या होगा, ये आ जाएगा कट जाएगा तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये तो अच्छी जाएगी, हाँ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भाई ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास b
टेन थीटा, ठीक है, प्लस माइनस बी टेन थीटा, तो हम एक ही लेते हैं बी टेन थीटा, ठीक है। ये तो अच्छा हो गया, मतलब हमारा अगर एक्स अगर ए सेक थीटा होता तो अपना काम अच्छा रहता। बट अगर मैं एक्स इक्वल टू एक्स, ये तो मैंने अपने सोचा, कैसे सोचा, बेस्ड ऑन, हाँ, ये हमने सोचा कि अगर ए सेक थीटा होता तो अपना सा प्यारा सा पैरामीट्रिक फॉर्म बन जाता। बट प्रॉब्लम है कि अगर ए सेक थीटा लेना है, भाई थीटा में क्या लूं, थीटा क्या लूं, अब ये प्रॉब्लम है, समझ लो, भाई कुछ तो लेना पड़ेगा। एक्स को ए कैसे लेना, भाई इसका कोऑर्डिनेट पी का कोऑर्डिनेट हमें, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास ए सेक थीटा होना चाहिए, तो कैसे होगा सर, उसके लिए फिर ये किया गया। देखो उसके लिए देखो कैसे हुआ, अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर, ये एक्स, ये भी एक्स ही होगा, ये डिस्टेंस ये एक्स ही होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज एक्स। और अगर मैं इसको यहाँ परपेंडिकुलर टेंजेंट खींचूं सर्किल पे, ये हो जाएगा रेडियस है। अब तुम देख के कह सकते हो ना एक्स क्या होगा, दिस इज बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब यहां से दिख रहा है कि जो एक्स है, ये एक्स इज नथिंग बट ए सेक थीटा, समझिए। तो इसका मतलब थीटा क्या है, थीटा वो नहीं है कि हम यहाँ से ज्वाइन, थीटा वो है कि आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और जहां पे मिले वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, तो जो टेंजेंट पॉइंट पी है वो जो इसके साथ एंगल बनाएगा ओरिजिन के साथ, दैट इज द थीटा, दैट इज द पैरामीटर। ओके, समझ गए? हाँ, अब ये सोचो, अगर मेरे को पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो चलो ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का कैसे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का भी ऐसे ही होगा। अगर मुझे भाई सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे जाओगे, ये पी, अगर मेरा पॉइंट पी यहाँ पे होता, ठीक है, यहाँ पे होता, तो एक्स कोऑर्डिनेट एनी वे क्या मिलता, माइनस माइनस ए सेक थीटा, हाँ, ठीक है। यहाँ लॉजिक तो सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि अलग लॉजिक से, बस तो थोड़ा देख, लॉजिक सेम ही रहेगा। ड्रॉप करो परपेंडिकुलर क्यू, यहाँ से टेंजेंट खींचो, ठीक है, टेंजेंट खींचोगे तो जो एंगल बनाएगा ये वाला एंगल, वो हो जाएगा थीटा। ओके, एंगल तो हमेशा ही लेंगे एक्स एक्सिस से विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये एंगल आ जाएगा अपने पास क्या, 180 माइनस थीटा, ठीक है, और रेडियस ए है, एक्स क्या आ जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, विल बी ए सेक पाई माइनस थीटा, ठीक है, और सेक पाई माइनस ए सेक थीटा हो जाएगा, और मतलब इसमें क्या क्वार्टर में, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, हो गया प्लस थीटा, ठीक है, ओके, पाई माइनस थीटा सेक स्क्वायर किया तो स्क्वायर हो गया, तो मुझे चाहिए प्लस, तो प्लस तो मिल जा रहा है, तो माइनस चाहिए, ठीक है। तो उसको सोच लेना कि कैसे किधर होगा, मे भी इधर हो जाएगा, मे भी इधर हो जाएगा, देखना किधर टेंजेंट खींचेगा, इधर टेंजेंट खींचेगा, टेंजेंट खींचेगा, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हो टेंजेंट जब ये बनाएगा एंगल, ये वाला एंगल थीटा इस टाइप का रहेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट की जरूरत नहीं पड़ती, समझा दिया, ऐसे बहुत कोई क्वेश्चन पूछा नहीं आता इसका, तो तुम्हें पता होना चाहिए थीटा है क्या चीज। ओके, ठीक है,
बाकी फोकल डिस्टेंस वगैरह वगैरह जैसे एलिप्स में था वैसे यहाँ भी रहेगा। ओके, फोकल डिस्टेंस मतलब क्या है? जैसे मान लो फोकल डिस्टेंस तुमसे पूछा जाए किसी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस, व्हाट इज फोकल डिस्टेंस? एलिप्स के केस में था फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस मान लीजिए एलिप्स था, याद है? ये अपन के पास एलिप्स है एंड किसी भी पॉइंट का पूछा जाए किसका, इस पॉइंट की का फोकल डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे कहीं फोकस है, अगर इसका गिवन दे रखा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस? फोकल डिस्टेंस इज पी एफ। और ये याद है कैसे निकलता था हमारा? ऐसे डिस्टेंस निकाल लो, तुम्हें तो पता ही है कि ए ई कॉमा जीरो और ये निकालो। एक और बेस्ट तरीका क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म में कि हम ये निकाल लें, ये डिस्टेंस, ये यहाँ पे मान लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को थोड़ा हाँ उससे हो उससे जाएगा। आसानी से निकल जाएगा, याद है भाई? ये P है ये M है, और मान लो इसको ज्वाइन ए किया बाई यहाँ पे, ई माइनस एक्स, तो हाँ हमें पता है पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। ओके, अभी ये और बाय द वे ये चीज जो अभी अप्लाई किया मैंने, इसमें ई की वैल्यू कोई रखा नहीं मैंने, इससे एप्लीकेबल फॉर हाइपरबोला एज वेल एज पैराबोला दोनों, सॉरी एंड एलिप्स दोनों के लिए एप्लीकेबल। ओके, कहाँ अंतर आएगा वो भी देखते हैं। अब हमें चाहिए फोकल डिस्टेंस पी एफ इज इक्वल टू ई पी एम, बट पी एम है क्या? पी एम इज, ये डिस्टेंस कितनी है? ए बाई ई है, और ये डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। वी कैन से ई पी एम ए बाई ई माइनस एक्स, बढ़ गया ए माइनस ई एक्स, ये आ जाएगा इसका फोकल डिस्टेंस। ओके, पी एम ए माइनस ई एक्स, और ये वाला फोकल डिस्टेंस क्या आ जाएगा भाई? किसी पॉइंट के दो फोकल डिस्टेंस होते हैं ना, एक तो यहाँ डिस्टेंस और एक दूसरे फोकस से भी डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस। पी एफ टू कैसे निकलेगा? पी एफ कैसे? वाला दूसरे उससे होगा ना, दूसरे डायरेक्टर। हाँ, जब हम इस फोकस की बात करेंगे तो वो डिफाइन होगा दूसरे डायरेक्टिव से, इज इक्वल टू माइनस ए बाई, तो हमें लेना पड़ेगा ये वाला। देन पी एफ टू के लिए हमारे पास ये डिफाइन होगा, ये वाला पी एफ टू डिवाइडेड बाई पी मान लेते हैं एम टू इज इक्वल टू ई, तो पी एफ टू हो जाएगा ई पी एम टू। तो पी एम टू क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट एक्स है और ये डिस्टेंस तो ए बाई ई होगा, ए बाई ई प्लस एक्स। ओके, ये आ जाएगा ए प्लस ई एक्स, एक का हो जाएगा ए माइनस ई एक्स छोटे वाले का, और दूसरे वाले का हो जाए ए प्लस ई एक्स। और अगर ध्यान दो भाई, किसी भी बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स, ठीक है, दोनों कट के 2a आ रहा है कि नहीं, तो ये बेसिक डेफिनेशन होता है किसी भी पॉइंट का एलिप्स होना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज कांस्टेंट, दैट इज 2a। गॉट इट? इसमें भी होगा हाइपरबोला में। हाइपरबोला में भी डिफरेंस आता है, हाइपरबोला में ये आता है, इसका डिफरेंस इज 2a। गॉट इट? मतलब अगर यहाँ पे तुम दोगे, अगर तुम यहाँ पे लोगे, ये ऐसे लिया, ऐसे लिया, यहाँ कहीं फोकस है F2, यहाँ कहीं फोकस है F1, यहाँ कहीं पे पॉइंट लिया, डिफरेंस PF2 माइनस PF1, डिफरेंस देता हूँ मैं ऐसे, इसको ये मत सोचो कोई भी बड़ा छोटा कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा मत सोचो कि यार ये बड़ा है छोटा, कहीं भी डिफरेंस में लिया मतलब डिफरेंस मतलब वैल्यू पॉजिटिव,
ये वैल्यू आ जाएगी 2a, एंड 2a क्या है, इनके वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस 2a। अब यहाँ पे अगर मुझे फोकल डिस्टेंस निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको तुम निकाल सकते हो। चलो मैं एक निकाल लेता हूँ, सोचना क्या आएगा नेक्स्ट वाला। भाई मुझे फोकल डिस्टेंस चाहिए pf1, फोकल डिस्टेंस हाइपरबोला में pf1 चाहिए। मैं वही अप्लाई करूंगा, यहाँ कहीं पे डायरेक्ट्रिक्स है, x इज इक्वल टू a बाई, मुझे p का कोऑर्डिनेट पता है x, y, तो आई कैन सी pf1 इज नथिंग बट e, और ये डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ये m हो गया, और एक्सिस ये है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, तो pf1 इज इक्वल टू epm, epm ये डिस्टेंस। पर ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो ये इसको ज्वाइन करेंगे अगर हम लोग, तो ये डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस x है, y इज x, फ्रॉम द y एक्सिस ये x है, और ये है a बाई, ये क्या आ जाएगा, e कॉमा pm इज नथिंग बट x कॉमा माइनस a बाई e, तो आ जाएगा e x माइनस a, ठीक है। सिमिलर तुम pf2 का भी करोगे, आ जाएगा e x प्लस a, ओके। ठीक है क्या, am I audible? Yes, Sarita, am I audible? Sir, you're audible. ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस, जो बड़ा डिफरेंस मतलब जो बड़ा में छोटा, pf2 डिफरेंस ऑफ pf1, तो बड़ा है ex प्लस a लिया, माइनस ex माइनस a किया, तो 2a आ गया, ठीक है। दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस। तो फोकल डिस्टेंस पैराबोला की, जैसे यहाँ एलिप्स लिखा अपने पास a प्लस ex, ये आपके पास एलिप्स का है, हाइपरबोला के लिए उल्टा हो जाएगा, ex प्लस a प्लस माइनस a फॉर हाइपरबोला, और पैराबोला के लिए e प्लस माइनस ex फॉर, सॉरी फॉर एलिप्स। क्यों, क्योंकि ऐड करना है a प्लस ex a माइनस a, तो ex ex कट जाएगा, यहाँ डिफरेंस लेना है ex प्लस a ex माइनस, और एक डिस्टेंस होगी, उसको अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, नॉट वाटर बॉटल पार्ट। ये हमने मैथ में भी पढ़ाया था, याद है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, लोकस z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 इज इक्वल टू 2a इज हाइपरबोला। कब कब रहेगा, जब इन दोनों का डिफरेंस, भाई ये हाइपरबोला है, ये z2 है, ये z1 है, ये z, जबकि व्हाट इज z माइनस z1, z वेरिएबल है, ये डिस्टेंस, इन डिस्टेंस का डिफरेंस, इसका डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड फैक्टर। दिस इज वैलिड इफ द, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है z1 माइनस z2, और ये डिस्टेंस कितनी है 2a। हाइपरबोला तभी बनेगा जब ये डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस गिवन है, 2a डिस्टेंस इज स्मॉलर देन z1 माइनस z2, ठीक है। Yes. मैंने ये भी बताया था, ये तब क्या बनेगा जब 2a इज इक्वल टू z1 माइनस z2, तो क्या बनेगा z, याद करो। पैरेलल लाइन बनेगी ना। हाँ हाँ लाइन, बट कहाँ वाली लाइन से बनेगी, तो ये z1 हो गया, ये z2 हो गया। अगर मैं z यहाँ पे लिया, ठीक है, तो z की z1 से डिस्टेंस
इक्वल है, अगर यहाँ पे लिया मैंने z और इनके बीच की डिस्टेंस 2a के बराबर है, देखो z की 2 minus Z1 हाँ is 2. हमारा इक्वेशन क्या है, z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 इज इक्वल टू 2a, जो कि बराबर है z1 z2 के। तो अगर z में यहाँ लूंगा तो z की डिफरेंस है, मैं डिफरेंस लेता हूँ, ठीक है। अरे जब ऐसे माइनस लिखोगे तब देखना पड़ेगा कि राइट लेफ्ट किधर लेना पड़ेगा। चलो मैं माइनस कर देता हूँ समझाने के लिए। माइनस z की z1 से डिस्टेंस ये हो गई और z की z2 डिस्टेंस ये हो गई। अल्टीमेटली अगर मैं ये z यहाँ नहीं होगा, z यहाँ कहीं तो होगा, ठीक है। z की z1 से डिस्टेंस दिस डिस्टेंस माइनस z की z2 डिस्टेंस ये डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन z1 z2। तो लोकस क्या होगा, लोकस विल बी द राइट हैंड साइड के सब देखो यहाँ पे होगा, ये होगा, ठीक है, इधर जाता रहेगा, बीच में कोई नहीं होगा। हाइपरबोला केस जब 2 is less, जब 2 is less than Z1 minus Z2, तभी भी you have to check कि is it Z1 पहले कि Z2 पहले, और उस हिसाब से राइट हैंड साइड ऑफ द हाइपरबोला लेफ्ट हैंड यस, मतलब आपका ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा, ठीक है, टू ब्रांचेस ऑफ पैराबोला। इसीलिए कई बार हम क्या ऐसे कुछ डायरेक्टली हमें दोनों ब्रांच चाहिए तो हम ऐसे लिख देते हैं z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 मॉडुलस इज इक्वल टू 2a। बुक में ऐसे लिख देते हैं, दैट विल रिप्रेजेंट बोथ द ब्रांचेस, दोनों ब्रांच को बताएगा, ठीक है, दैट विल रिप्रेजेंट बोथ द ब्रांचेस। क्योंकि अब यहाँ पे मॉड लगा दिया तो z माइनस z1 बड़ा हो चाहे z माइनस z2, अल्टीमेटली इनका जो डिफरेंस आएगा वो 2a के बराबर, दोनों साइड हो सकता है। अदरवाइज अब ये ब्रांच रिप्रेजेंट किया, ये ब्रांच रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस लगा दूंगा, यहाँ पे डिफरेंस लगा दूंगा, तो ये भी हो सकता है या इधर वाला हो सकता है। अच्छा z1 का सकता क्या, z1 हो सकता है कि अगर z इक्वल z1 लिख दिया मैंने यहाँ, देखो ये 0 आ गया, अगर z यहीं पे आ जाए ये 0 हो गया, और z की z2 से 2 डिस्टेंस, तो ये भी हो सकता है, ये एंड पॉइंट में ये भी पॉइंट आ सकता है, ठीक है, ये भी पॉइंट आ सकता है, और बीच का नहीं होगा, it will be the array away from z1 and z2। Got it. ये थोड़ा सा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी शायद मैं हल्का क्यों बताया था, तो वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई एम एंडिंग द क्लास हियर, सर ठीक है। टुमारो नेक्स्ट टाइम विल सी द कंजुगेट बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ओके ओके, सो आई एम एंडिंग द क्लास हियर। थैंक यू सर।